Hello friends, Khamagani. How are you all doing? I hope you're doing good and all are safe. My name is Kavita Rathore and welcome to my channel Joy of Sharing. Today in Joy of Sharing, we have a very special guest with us. I'm very sure कि आपने जब कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या ऐसी कोई भी सिमिलर डिग्निटरी ऑफ इंडिया और ऑफ एनी अदर कंट्री टेलीविज़न पे देखी हो या कभी आपको रूबरू देखने का मौका मिला हो, तो आपने ये बात बिल्कुल नोटिस की होगी कि दे आर ऑलवेज एनसर्कल्ड विद स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सुपर कॉप्स और ऑफिसर्स और कमांडोज. एंड उनको देख के आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन रहे होंगे कि these smartly dressed officers, are they part of police or are they part of army? ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं एंड उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, उनका कैरियर किस तरह का रहता है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हुए होंगे. सो वी हैव बीन very lucky and we have got one of such distinguished and celebrated super cop with us in Joy of Sharing on Conversations, and he has been part of the prestigious SPG group. The full form of SPG is Special Protection Group, which is mainly devoted or primarily responsible for the protection and security of the Prime Minister of India. So he has spent almost a decade being an officer in SPG and has served the Prime Minister of India. Not only this, he has spent more than a decade serving as an officer to the BSF, the Border Security Force, one of the leading paramilitary forces of India. And currently he is serving as the Deputy General Manager of Cadila Pharmaceutical. He is none other than Assistant Commandant DGM Pratap Singh Ji Rathore. Let's take a sneak peek into his career and achievements. He was born to Thakur Sahab Shri Prem Singh Ji of Jamla, Gujarat, and Shrimati Anand Kunwar of Guda, Rajasthan. Mr. Rathore was very sincere in his studies from the beginning and has completed schooling from various cities of Gujarat. He completed his graduation from the Bhavans College, Ahmedabad. After graduation, in the first attempt, he cleared 2 competitive exams as a development officer in LIC and as a sub-inspector in the Border Security Force. Out of the 2, he decided to serve the country by joining the BSF. He received his rigorous 1-year BSF training from the BSF Academy of Tikanpur, MP. He was the only trainee from Gujarat out of the total batch of 250 officers. During his association with the BSF, he underwent many courses like the Platoon Weapon Course, Basic Intelligence Course, Junior Leader Course, and PC Tech and CC Tech courses. He was a topper in many of these. Due to his exceptional knowledge and skill, Mr. Rathore also served as a platoon weapon instructor in the prestigious Academy of the BSF. Served in various parts of India like smuggling-prone areas of West Bengal, Naxal-prone areas of Andhra Pradesh, terrorist-affected areas of Kashmir, and desert areas of Gujarat and Rajasthan for a considerable period. Served as an intelligence and vigilance officer of the battalion and sector in West Bengal for a considerable period. Mr. Rathore got selected on a deputation for the prestigious Special Protection Group, the SPG, for a decade from 1998 to 2008, serving the Prime Minister of India.
Mr. Rathore accompanied PM of India to large number of tours, international as well as domestic, for the close protection duties. Mr. Rathore is a highly celebrated officer and received many promotions in the BSF, latest being of the Assistant Commandant. Not only this, for his best services, he was awarded many commendations, rewards, and appreciation letters from the DG and IG of BSF and also from the Director of SPG. Took voluntary retirement from the BSF with outstanding service records of more than 2 decades. Later, Mr. Rathore joined the Cadila Pharmaceuticals Limited, Ahmedabad, a renowned pharmaceuticals company of India, and currently serving the same at the post of Deputy General Manager. Mr. Rathore is married to Srimati Veena Kumari Parmar of Sudasana, Gujarat, and blessed with 2 very talented children, elder one serving in the US as an engineer and younger one is in the final year of MBA. So let's get started with our one-on-one conversation with the Assistant Commandant and the DGM Pratap Singh Ji Rathore. Before we do that, a small request. जॉय ऑफ शेयरिंग से जुड़े हुए रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले किसी भी इंटरेस्टिंग वीडियो से आप मिस आउट ना हो जाएं और जुड़े हुए रहें. Obviously, it is going to motivate us, encourage us, and also it will help us grow our Joy of Sharing family. Feel free to like our videos and share it with your friends and family. Thank you so much. Khamagni Hukum, a very warm welcome to Joy of Sharing. खमागणी कविता, आपको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने भी अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए आज ऑर्गेनाइज किया है. Let's begin from the beginning. So if possible, share something with us about your early life, like आपके बचपन के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके अपब्रिंगिंग के बारे में हमको कुछ बताइए. जैसा कि आपने मेरे अर्ली लाइफ के बारे में पूछा है, तो मेरा अर्ली लाइफ, मेरा चाइल्डहुड, मेरा एजुकेशन, वो सब कुछ ऐसे कहने जाओ तो काफ़ी अप एंड डाउन्स में रहा है. मेरा बर्थ भावनगर में हुआ था. मेरे पापा भावनगर में सर्विस में थे, तब मेरा बर्थ हुआ था. और उसके बाद में शुरुआती मेरा एजुकेशन है कॉन्वेंट स्कूल में हुआ था, जो कि भावनगर में काफ़ी फेमस स्कूल है, फातिमा कॉन्वेंट हाई स्कूल. क्लास केजी से लेके क्लास 4 तक मेरा एजुकेशन वहाँ पे हुआ. और मैं अपने आप को बहुत लक्की समझता हूँ कि मेरा जो जन्म हुआ है वो एक रॉयल फैमिली, जागीरदार फैमिली जामला की है, उसमें हुआ है. तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मेरे को हमेशा अपने पर गर्व रहता है. तो प्राइमरी एजुकेशन क्लास 4 तक होने के बाद में पापा का रिटायरमेंट हो गया था, और रिटायरमेंट के बाद में हमको वापस मूव करना पड़ा. हमारा जो नेटिव है जामला, वहाँ पे तो फातिमा कॉन्वेंट हाउस स्कूल में मैं कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई मेरी हुई थी क्लास 4 तक. उसके बाद में बिल्कुल गांव में मैं पहुँच गया और जाके मेरी क्लास 5 से लेके क्लास 10 एसएससी की जो भी मेरा एजुकेशन था वो गुजराती मीडियम में हुआ. तो ये काफ़ी मेरे को मतलब एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से फिर गुजराती मीडियम में जाना पड़ा. और शुरुआत में काफ़ी चैलेंजेस लगा मेरे को, लेकिन उसके बाद में मैं काफ़ी सेट हो गया क्लास 10 तक. और गांव में जनरली थोड़ा एजुकेशन में कंपटीशन लेवल कम होता है, तो मैं शुरुआत से ही क्लास 5 से लेकर 10 पर क्लास का टॉपर ही रहा. फिर क्लास 10 मेरा कंप्लीट जामला में होने के बाद में फर्दर एजुकेशन अवेलेबल नहीं था गांव में, तो उसके लिए या तो मेरे पास में ऑप्शन था हिम्मतनगर अप एंड डाउन करूं, लेकिन उस वक़्त मेरे सबसे बड़े जीजा है
वो गारियादार में, जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है, वहाँ पे सेटल है। तो मैंने वहाँ पे मूव किया क्लास 11 और 12th के एजुकेशन के लिए। तो 2 साल मैंने मेरा हायर सेकेंडरी स्कूलिंग वहाँ पे कंप्लीट किया, और 5 to 10 वाला एजुकेशन का सिलसिला वहाँ जारी रहा। वहाँ पर भी क्लास 11 और 12th का मैं हमेशा टॉपर रहा, और जनरली उस टाइम पे जो टॉपर होते थे वो 60% और 70% के बीच में रहते थे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन फिर भी मेरा पढ़ाई में थोड़ा अच्छा लगाव था। तो इस करके 12th तक का मेरा एजुकेशन काफ़ी अच्छा हुआ। फर्दर गारियादार में कॉलेज एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी, तो फिर वापस मैं जामला मूव कर गया, और फर्स्ट ईयर में मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया था। तो हिम्मतनगर में कॉलेज है, और पहला साल मैंने जामला से अप डाउन करके हिम्मतनगर में मेरा फर्स्ट ईयर बीकॉम कंप्लीट किया। लेकिन गांव में भाई लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में रहने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि मैं पढ़ाई के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया था, और रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं था। तो मेरे बड़े ब्रदर दादू भाई धर्मेंद्र सिंह जी, जो पहले से अहमदाबाद में सेटल थे, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की एग्ज़ामिनेशन या पढ़ाई के लिए आपको अहमदाबाद मूव करते हैं। तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर मैंने भवंस कॉलेज अहमदाबाद के अंदर पढ़ाई की, और मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम वहीं कंप्लीट हुआ, और काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ में मैं पास हुआ था। So what inspired you to join the BSF only? आपको BSF ज्वाइन करने के लिए किस चीज़ ने प्रेरित किया, और आपने कोई दूसरी कोई फोर्स या ग्रुप क्यों ज्वाइन नहीं किया? यस कविता, आपने मेरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन और स्कूलिंग के बारे में आपने मेरे को पूछा। तो मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ अहमदाबाद में, तो मेरे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि मैं कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करूं, या कहीं सेटल डाउन हो जाऊं, कहीं जॉब मेरे को मिल जाए, या कोई बिज़नेस करूं। तो आपने जैसे मेरे को पूछा आपने BSF क्यों चूज़ किया, तो मेरा मतलब चारों तरफ से जो भी मेरी ट्राई चल रही थी, फर्स्ट जॉब मेरे को BSF मिला था। लेकिन ग्रेजुएशन होने के बाद में मेरा केवल एम BSF ज्वाइन करने का नहीं था। हालांकि BSF ज्वाइन करने के बाद में मेरे को BSF से बहुत प्यार हो गया, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन जब 1985 में हुआ था और BSF मैंने 87 में ज्वाइन किया था, तो करीब 2.5 साल का जो टाइम था उसमें मैंने सेटल होने के लिए बहुत सारी ट्राइज की थी। उसमें मैंने इंडिया की कोई भी सर्विसेज की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैंने ना दी हो, ऐसा नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे रेलवे हो या BSF हो या बैंक्स हो या LIC हो, और बहुत ज़्यादा काउंट है, मतलब मेरे को याद भी नहीं है, लेकिन मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैंने बहुत तैयारी की थी। तो ये तैयारी करने के दौरान मेरे को 2 एग्ज़ाम में सक्सेस मिला। जैसा BSF का सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने पास किया, और एक LIC में मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर की एग्ज़ाम एक पास की। लेकिन सबसे पहले मेरे ऑफ़र BSF से आया, तो मैंने BSF ज्वाइन कर लिया। लेकिन ग्रेजुएशन होने और मेरा BSF ज्वाइनिंग करने के बीच का जो 2.5 साल था, वो मेरे लिए मतलब बहुत स्ट्रगल करने का टाइम था, क्योंकि मेरे फादर जो है वो रिटायर हो चुके थे, और हमारा बहुत बड़ा फैमिली था। हम 4 बहनें और 2 भाई, तो 6, और फादर और मदर, ऐसा करके बहुत बड़ा परिवार था। तो दिमाग में हमेशा ये रहता था कि कैसे भी करके कोई जॉब मैं करूं, और उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करता रहा। लेकिन इसके प्रिपरेशन के साथ साथ में मैंने कोई भी इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए भी बहुत ट्राई किया। उसमें मैंने 4-5 चीज़ों के अंदर मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा। मैंने एक बार LIC के अंदर एज ए एजेंट भी ज्वाइन किया। एक मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर कांटेक्ट में आए थे, तो मैंने एजेंट का मेरे को काम दिया। तो कुछ LIC की पॉलिसीज़ मैंने सेल की। और इसके अलावा जामला के अंदर मेरे बड़े ब्रदर थे, उनका क्वारी का बिज़नेस था, तो ब्रदर को सपोर्ट करने के लिए मैंने क्वारी का भी बिज़नेस उनको हेल्प किया बिज़नेस में। और तीसरा, जब हम लोग अहमदाबाद में रहते थे, तो अहमदाबाद में ब्रदर का
मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन का आबाद डेयरी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट था ट्रांसपोर्ट का, तो उसमें भी मैंने ब्रदर को हेल्प की। उसके अलावा हमारे गांव में, जामला गांव में कॉरी का बिजनेस है, मेटल का, स्टोन मेटल का। तो उसमें मैंने एक बार रेलवे में टेंडर भरा था, तो लकीली टेंडर मेरे को मिल गया। वो मेरे अंकल जो है महेंद्र सिंह जी राठौड़, मेरे रियल अंकल है, तो उनके सपोर्ट से मैंने ये बिज़नेस किया और वो एक प्रोजेक्ट मैंने 6 महीने में पूरा किया। और इसके अलावा अहमदाबाद के अंदर मैं फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने पार्ट टाइम में एक सिक्योरिटी सर्विसेज में भी जॉब किया था। तो मॉर्निंग में मेरी कॉलेज रहती थी और 4 to 12 सेकंड शिफ्ट में मैं शिफ्ट इंचार्ज सिक्योरिटी में मैंने मेरे अंकल ने एक जॉब दिलवाई थी वो भी किया था। और जब जामला में मेरा स्टे रहता था, तो जामला से करीब 15 किलोमीटर दूर साबर डेयरी है, तो साबर डेयरी में भी फर्दर अंकल के कांटेक्ट से मेरे को सिक्योरिटी इंचार्ज का जॉब मिला था, वो भी करीब मैंने 6 महीना किया। तो बीएसएफ की सर्विस, परमानेंट सर्विस मिलने से पहले ये काफ़ी स्ट्रगल्स थे, कुछ चीज़ें अभी मेरे को याद भी नहीं है, लेकिन ये 2.5 साल कंटिन्यूस फॉलोअप करता रहा मैं जॉब सर्चिंग के लिए या कोई बिजनेस सेटल करने के लिए, और अल्टीमेटली मैं बीएसएफ पे ज्वाइन हो गया। तो उसके बाद मेरा बीएसएफ का करियर स्टार्ट हो गया। सर, आपकी फैमिली के क्या रिएक्शन थे जब उनको पता चला कि आप बीएसएफ ज्वाइन कर रहे हैं? तो वर दे हैप्पी, दे वर एनकरेजिंग, या उनको आपके लिए दे वर वरिंग कि ये बीएसएफ ज्वाइन कर रहे हैं? कविता, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि जामला जैसे वंडरफुल फैमिली का मैं मेंबर हूँ, और मेरे इमीडिएट फैमिली के अलावा कंप्लीट हमारा जो दादोसा का फैमिली है, जामला यूनाइटेड फैमिली, उसका एक एक मेंबर मतलब सही में डिलाइटेड है कि मेरे को ऐसी जॉब मिली। क्योंकि गांव में रहने के बाद में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, और उसके अंदर से कोई सर्विसेज में सिलेक्ट होता है या कोई अच्छा बिजनेस करता है, तो मेरे लिए तो नहीं, लेकिन बल्कि मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी की ये चीज़ थी कि मेरे को जॉब लग गया है। और मेरे परिवार के लोग और उसके साथ में मेरे ब्रदर और मेरे भाभी, जब मैं बीएसएफ ज्वाइन करने के लिए जा रहा था बीएसएफ एकेडमी टिकनपुर में, तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तक मेरे को छोड़ने आए थे। तो इससे बड़ा सपोर्ट या इससे बड़ा खुशी मतलब कैसे जाहिर कर सकते हैं। तो हमेशा मतलब शुरुआत से और आज तक मेरे इमीडिएट फैमिली और मेरा पूरा परिवार का सपोर्ट हमेशा साथ में है। So share with our viewers that what is BSF all about, and वो बाकी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है हमारे इंडिया की, उससे कैसे अलग है? जैसे भी मैंने आपको बताया, मैंने बीएसएफ ज्वाइन कर लिया और बीएसएफ में मैंने करीब 21 साल तक 21 साल तक सर्विस कंटिन्यू किया। उसके बाद में मैंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फोर्स है जो पैरामिलिट्री फोर्स की कैटेगरी में आते हैं, 3-4 फोर्सेस, जिसमें बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, एसएस भी है। तो बीएसएफ का जो मेन रोल है नेशनल सिक्योरिटी में, उसका है इंटरनेशनल बॉर्डर्स को गार्ड करना। जैसे इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, बर्मा के साथ में है, तो उसका रोल इंटरनेशनल बॉर्डर जो इंडिया के साथ में लगती है उसका गार्ड करना है। तो इस करके बीएसएफ बाकी फोर्सेस से अलग होती है, लेकिन हर एक फोर्सेस जो है उनके अपने अपने टास्क होते हैं, रोल एंड टास्क अलग होते हैं। जैसे सीआरपीएफ का रोल है नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। और आईटीबीपी का जो है वो जो स्नो बॉर्डर है इंडिया का चाइना के साथ में, तो वो पर्टिकुलर उस फील्ड में ट्रेनिंग दी जाती है। तो ज़्यादातर मतलब ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेस है, वो मतलब जॉब और उनका रोल थोड़ा अलग रहता है, लेकिन आते सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो बीएसएफ का एक स्पेसिफाइड जॉब है। सर, आपने एग्ज़ाम्स की तैयारियां कैसे की? फिजिकल एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम, बोथ ऑफ देम, और आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, एंड व्हाट वाज द प्रिपरेशन टाइम पीरियड ऑल अबाउट? जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मेरा एम था
किसी भी तरह से सेटल होना, चाहे बिजनेस में सेटल हूँ या सर्विसेज में जाऊँ। तो बहुत सारी मैंने एग्ज़ाम दी थी और उसमें एक बीएसएफ की तैयारी भी मैंने अलग से करी थी। तो साथ में मेरा पार्ट टाइम जॉब्स है या मैं बिज़नेस के अंदर सपोर्ट करता था अपने फैमिली को। तो ये करके मतलब प्रिपरेशन के लिए मेरे को टाइम थोड़ा कम मिलता था, लेकिन फिर भी उस टाइम पे जो भी मार्केट में अवेलेबल थे मटेरियल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, वो मैं अपने पास में रखता था और जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं पक्का करता था। और धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई उस टाइम का, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग और इंटरव्यू स्किल्स, ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी स्टडी करके एक कॉन्फिडेंस मेरे में पैदा कर दिया था कि अभी मैं कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। तो बीएसएफ की स्पेशल तैयारी तो नहीं कह सकते, लेकिन बाकी सारी कंपटीशन के साथ में मैंने बीएसएफ की तैयारी भी करी थी। और लकीली मेरे को सबसे पहले मैंने क्लिक बीएसएफ की सर्विसेज में किया था और मैंने बीएसएफ ज्वाइन करी। सर, इन करंट टाइम्स अगर किसी को बीएसएफ ज्वाइन करना है, सो व्हाट इज़ द प्रोसेस वन हैज़ टू गो थ्रू? बीएसएफ पैरामिलिट्री की एक फोर्स है और उसके अंदर बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है। ये सारी सर्विसेज का एसएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और उनकी वैकेंसी के मुताबिक या फिर इंडिविजुअल चॉइस के हिसाब से उनको फोर्सेस अलॉट की जाती है। इसकी प्रिपरेशन में मतलब एसएससी का रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिज़िकल क्लियर करना है और एक पूरा प्रोसेस आपने कंप्लीट करना और फाइनल आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो दूसरा, इसकी सिलेक्शन के अंदर आपको जिसको मतलब जो भी व्यूअर्स उसमें जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला नंबर 1 क्वालिटी उनमें ये होना चाहिए कि फ़िज़िकल फिटनेस का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एंट्री लेवल पे जो फिज़िकल टेस्ट वगैरह कंडक्ट होते हैं वो आप अगर क्लियर नहीं होते तो आप अल्टीमेटली फोर्स को एंटर नहीं कर पाओगे। तो रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ में, रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ साथ में आपको फिज़िकल टेस्ट की तैयारी भी करनी चाहिए। तो मेंटली और फिज़िकली टफ होना चाहिए, प्रिपरेशन के साथ में जाएगा तभी ये सारी एग्ज़ाम क्लियर हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। हज़ारों की स्ट्रेंथ में एंट्री होती है, लेकिन जो एस्पिरेंट्स है वो लाखों की तादाद में होते हैं। तो आपको एक भीड़ से हटके एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है। बीएसएफ नहीं, किसी भी सर्विसेज के लिए ये एक ही मंत्र है कि आपको कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करना है और हमेशा कंटिन्यूसली फॉलो अप करना है ये सारी चीज़ों में, और जब तक आपका एम अचीव ना हो जाए। सर, आपका बीएसएफ में जो ट्रेनिंग पीरियड था वो कैसा था? आपकी ट्रेनिंग जो बीएसएफ में थी उसके बारे में हमको कुछ बताइए। जैसे कि बीएसएफ की ट्रेनिंग के बारे में आपको बताया, बीएसएफ की ट्रेनिंग का करीब 52 वीक्स या 1 साल का पीरियड होता है। उसमें ऑल राउंड ट्रेनिंग होती है, जैसे फिजिकल फिटनेस, फायरिंग स्किल्स, टैक्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे सब्जेक्ट मतलब थॉरोली और डीपली मतलब आपका सिलेबस के अंदर कवर करते हैं, ताकि एक मिडिल लेवल और टॉप लेवल के ऑफिसर्स प्रैक्टिकल ग्राउंड में जाने के बाद में उनको कोई दिक्कत ना आए, उस टाइप का ट्रेनिंग प्रोग्राम इनका बनाते हैं। तो शुरुआत में जैसे कॉलेज लाइफ से या सिविल लाइफ से आप जाते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि वहाँ का जो फिज़िकल टेस्ट है, फिज़िकल ट्रेनिंग है, वो काफ़ी टफ होती है, क्योंकि आप ट्रेन नहीं होते हैं और शुरुआती दौर में आपकी बॉडी ऑटोनॉम होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन 1 या 2 महीने आप जब वहाँ एडजस्ट हो जाते हो, तो उसके बाद फिर ट्रेनिंग एक एन्जॉयमेंट है और अपने सही लगन से आप ट्रेनिंग करते हैं, और आपके साथ में जो भी बैचमेट्स होते हैं वो एक फैमिली की तरह हो जाते हैं। और जैसे बीएसएफ सेंट्रल फोर्सेस में आता है तो पूरे इंडिया से लोग आते हैं, मल्टी कल्चर्ड और मल्टी लैंग्वेज बोलने वाले सब आते हैं, तो एक अलग टाइप का आपको वहाँ पे परिवार मिलता है। हमारा जो बैच था बीएसएफ का वो करीब 250 का था, और लकीली पूरे गुजरात स्टेट से ट्रेनिंग लेने वाला मैं अकेला ही था सब इंस्पेक्टर बैच में।
तो मेरी भी एक अलग से पहचान थी कि मिस्टर राठौर है वो गुजरात से आए हैं, तो वो भी मेरे लिए एक गौरव की बात है। और ज़्यादातर फोर्सेस के अंदर गुजरात में से जाने वालों की तादाद आज भी थोड़ी कम है, तो इस करके मेरी एक अलग से आइडेंटिटी थी वहाँ पे। और ट्रेनिंग वैसे देखने जाओ तो आज भी हम लोग ट्रेनिंग को याद करते हैं। वो ट्रेनिंग में हमने जो टाइम बिता है वो एक वंडरफुल मेमोरी है आज भी हमारे दिमाग में। हमारे मतलब 250 सब इंस्पेक्टर पास आउट होने के बाद में इंडिया के वेरियस बॉर्डर पे सब पोस्टेड हुए, लेकिन अब आजकल जो मल्टीमीडिया और सोशल मीडिया की वजह से वापस हम लोग एक बार दोबारा इकट्ठे हो गए। आज से हमारे 33 इयर्स पहले जो ट्रेनिंग हुई थी 1987 में, लेकिन हमारे बैचमेट्स जितने भी अवेलेबल है अभी वो सारे हम लोग जुड़े हुए हैं और पुरानी यादें हम लोग आज भी शेयर करते हैं। तो ट्रेनिंग का हमारा पीरियड अपने लिए इंडिविजुअल के लिए तो ट्रेनिंग बहुत मायना रखती है, लेकिन एक ओवरऑल बैचमेट्स के लिए भी हमारे लिए बहुत यादगार समय था वो 1 साल का। वो आज भी हम बखूबी बहुत याद करते हैं। So once you had joined the BSF as a newly commissioned officer, तो शुरू में आपको कुछ दिक्कतें आई, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। What was it like? इनिशियली जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई 1 साल की, उसके बाद में हम लोगों को जो पोस्टिंग्स मिलते हैं वेरियस बॉर्डर्स पे हमारी पोस्टिंग होती है वैकेंसीज के हिसाब से। तो अभी थियरिकल और फिज़िकल फिटनेस और टेक्निक स्किल्स वो हमने कागज़ों में और ग्राउंड में देख लिया, लेकिन असली उसकी मतलब पहचान हमारी तभी बनेगी जब हम फील्ड में जाके ये चीज़ हम ग्राउंड के अंदर उसको यूज़ करें। तो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के बाद में जब फील्ड में ऑपरेशनली जाते हैं वहाँ की मतलब लोकल चैलेंजेस अलग होती है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डिप्लॉयमेंट ज़्यादातर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे होती है, तो वहाँ की चैलेंजेस अलग होती है। लेकिन ट्रेनिंग जो हमने 1 साल की ली थी, तो उसके बाद वहाँ जाने के बाद में काफ़ी चीज़ें हमको पहले से माइंड में क्लियर थी। और वहाँ पे हम हमारे सीनियर ऑफिसर्स के अंडर में रहे जो काफ़ी तजुर्बे वाले थे, और धीरे धीरे ट्रेनिंग के साथ साथ में हम लोग प्रैक्टिकल में भी बहुत जल्दी हमने कैच कर लिया। और ट्रेनिंग के बाद में जब आप इनिशियली नए बॉर्डर पे जाते हो या किसी भी पोस्टिंग में जाते हो, तो किसी को पूछने में बिल्कुल आपको हिचक नहीं होनी चाहिए। इवन आपसे कोई जूनियर है या आपसे काफ़ी सीनियर भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसा फील करेंगे सामने वाला। शुरू का जो 6 महीना 1 साल 2 साल है उसमें वो भी एक ट्रेनिंग का पार्ट ही बन जाता है, क्योंकि काफ़ी नई बॉर्डर्स नई जगह आपको जाना है, तो हर एरिया के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। तो मेरी जो BSF की पोस्टिंग रही उसमें मिलिटेंसी प्रोन कश्मीर में मेरी पोस्टिंग रही है। डेजर्ट वाली राजस्थान बॉर्डर बाड़मेर जैसलमेर रही है। सी बॉर्डर क्रिक बॉर्डर भूज वहाँ पे रहा। नॉर्थ ईस्ट में मैं रहा हूँ, बंगाल बॉर्डर पे रहा हूँ। तो जितनी पोस्टिंग्स आपकी आती तो हर जगह के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, तो आपको एक टीम वर्क के हिसाब से हर एक चैलेंजेस का सामना करना है। और हमको जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है तो उसको हमने जस्टिफाई करना है और अपनी सर्विस को जस्टिफाई करना है और ईमानदारी से हमेशा काम करना है। सर, अगर पॉसिबल है तो इफ़ यू कैन शेयर विद अस आपका सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कोई भी BSF का जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो, इफ़ यू कैन शेयर विद आवर व्यूअर्स कि ऐसा कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आपने एनकाउंटर जो किया हो। जैसे BSF में मैंने बताया ऑल इंडिया के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमारा है, तो जितनी अलग अलग बॉर्डर है उतने अलग अलग चैलेंजेस है। बहुत सारे ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस और बॉर्डर गार्डिंग ऑपरेशंस, ये सारे लिए। लेकिन मैं जब जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयड था, मिलिटेंसी प्रोन एरिया उस वक़्त मतलब पीक पे थी मिलिटेंसी, 1994 की बात कर रहा हूँ करीब। तो मेरा डिप्लॉयमेंट डोडा डिस्ट्रिक्ट में था। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट का जो हिमाचल प्रदेश के साथ में हिली एरिया लगता है,
वहाँ से लोकल्स और मिलिटेंट्स की डर की वजह से हिंदू पॉपुलेशन करीब काफ़ी गांव, उसमें 800 से 900 लोग वहाँ से डर के मारे भाग गए थे बाई हिल बॉर्डर हिमाचल में। तो वो करीब 3-4 दिन का उनका सफ़र होता है, तब वो हिमाचल में जाते हैं। वहाँ पे मतलब कोई भी रोड रास्ते कन्वेंस नहीं है जाने के लिए। तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उनको फिर वापस एस्टाब्लिश करना है हिमाचल से कश्मीर में लाने के लिए। तो एज ए कंपनी कमांडर मेरे को टास्क दिया गया था। मेरे साथ में एक मेरे और कलीग भी थे, और वहाँ के लोकल एसपी और डीएम थे, उनकी गाइडेंस के हिसाब से हमने ये ऑपरेशन किया था। और बाई फुट हमको हिली एरिया में ट्रैवल करना था। करीब जाने में 1.5 दिन का टाइम लगता था, और टोटल हिली एरिया कवर करना था। और उसके बाद में ये चैलेंज था कि वो 800 या 900 के बीच में जो सिविलियंस थे, जिसमें छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े, उनको सबको लेके मिलिटेंट्स प्रोन एरिया के अंदर से सिक्योरिटी के साथ में वापस उनको घर तक लेके आना। तो ये सब मिला के हमारा 4 दिन का ऑपरेशन था, और मैंने उसमें लीड रोल किया था। और उनके दिलों में ये भरोसा हमने दिलाया था कि आपको वहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। और 800-900 का क्राउड विद सिक्योरिटी, तो वो मेरी पूरी कंपनी मेरे साथ में थी, और हम लोग उनको सेफली लेके आए थे। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पहुंचने के बाद में हमारी जो टीम थी, उसका स्वागत वहाँ के एसपी और डीएम ने किया था। तो ये जो ऑपरेशन मैंने लीड किया था, वो मुझे आज भी याद है। Wow, that must have been very thrilling and amazing. Kudos to you, sir. So, as you were part of the prestigious Special Protection Group, tell us something about it कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, उसकी ट्रेनिंग कैसे थी, और उसकी जो ट्रेनिंग है, was it more difficult than the training you had received in BSF? जैसे आपने बताया, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में मेरा करीब 10 साल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अंदर टेन्योर रहा। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो उसका रोल है, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी रहती है एसपीजी की। इसका जो प्रोसीजर है, एसपीजी परमानेंट फोर्स नहीं है, वो टोटल डेपुटेशन पे आने वाली स्ट्रेंथ के ऊपर से चलती है एसपीजी। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि वो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और स्टेट पुलिसेस, ये सब मिला के वो डेपुटेशन में आते हैं। और सिलेक्शन का ये प्रोसीजर है कि भी आपका जो रिकॉर्ड है वो क्लियर होना चाहिए। मिनिमम 5 इयर्स आपकी सर्विस होनी चाहिए उस पर्टिकुलर फोर्स में, और आपका रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद में वहाँ के एंट्रेंस टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह सब क्लियर करना होता है। सबसे बड़ा मतलब क्राइटेरिया है कि आपका सर्विस रिकॉर्ड एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और उसके बाद उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह आपको क्लियर करने के बाद में एसपीजी में आपको एंट्री मिलती है। और करीब मेरा 10 साल का टेन्योर था, वो मैक्सिमम एक्सटेंडेड टेन्योर है 10 इयर्स का, 5 to 10 इयर्स तक लोग रहते हैं। और एसपीजी में जाने के बाद में बेसिक ट्रेनिंग तो हमारे पास में होती है, वेपन्स वगैरह की, फिजिकल फिटनेस की, लेकिन एक शॉर्ट ट्रेनिंग करीब 3-1 महीने की एसपीजी की स्पेशल ट्रेनिंग होती है। उसमें हमको फायरिंग, फिजिकल फिटनेस दोबारा मतलब उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। और ख़ास करके वीआईपी प्रोटेक्शन का ट्रेनिंग अलग से दिया जाता है। टेन्योर मतलब 3 महीने का होता है, लेकिन वो 3 महीने का जो टाइम है फिज़िकली मेंटली बहुत टफ रहता है, क्योंकि कम टाइम में काफ़ी सिलेबस होता है। और बीएसएफ में करीब 10 साल की सर्विस होने के बाद में मैंने एसपीजी ज्वाइन किया था। और उस वक़्त मैं इंस्पेक्टर बन चुका था, तो एक सीनियर लेवल के लेवल पे मैं बीएसएफ में काम कर रहा था। तो काफ़ी थोड़ा रिलैक्स हो जाता, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने की वजह से फिज़िकल फिटनेस इतना नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में वहाँ के उस्तादों ने भी काफ़ी मजाक करते थे, भी साहब आप बहुत मज़े करके आए हो एसपीजी में, बीएसएफ में। तो उसके बाद उनको देखने से पता चलता है कि इसको काफ़ी टफ रहेगा, लेकिन 1 या 2 वीक के बाद में हम लोग वापस उसके अंदर सेट हो गए। और ट्रेनिंग ये 3 महीने की होती है। उसके बाद में आपको लोकेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जितने भी लोकेशंस होते हैं उसमें फिज़िकल पर्सनल सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जाता है।
सर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा एसपीजी के बारे में और डिटेल में बताइए, और आपका एसपीजी से रिलेटेड कोई स्पेशल यादगार एक्सपीरियंस हो, देन शेयर दैट आल्सो विद अस। एसपीजी का जो टेन्योर मेरे लिए है वो भी मतलब बीएसएफ से भी ज़्यादा यादगार इसीलिए है कि आपको दिल्ली के अंदर रहना है और एक हाई प्रोफाइल जॉब कह सकते हैं इसको, क्योंकि आपने वीआईपीज़ के बीच में ड्यूटी देना है और आपने अपना फिज़िकल फिटनेस, आपका फायरिंग स्किल एक पीक के ऊपर आपने मेंटेन करना है। तो हर रोज़ के लिए आपके लिए मेंटेन के भी प्रोफेशनल ड्यूटी जो पर्सनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ है उसके अलावा आपने अपना जो स्टैंडर्ड है वो हमेशा मेंटेन करना है, वरना आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। टेस्ट क्राइटेरिया में आप क्लियर नहीं होते तो उसी दिन आपको अपनी पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस जाना पड़ता है। तो ये पूरा टाइम में करीब करीब एक स्पोर्ट्समैन के जैसा हमारा लाइफ हो जाता है। फिज़िकल फिटनेस, फायरिंग्स और यूएससी वगैरह जो भी ट्रेनिंग होती है उसमें टच भी रहना है, और साथ साथ में आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हमको जो मिलता है वीआईपी सिक्योरिटी का वो बखूबी निभाना है, ईमानदारी से निभाना है, क्योंकि कंट्री ने हमारे ऊपर इतना भरोसा करके हमको इतनी बढ़िया ट्रेनिंग देके एक वीआईपी सिक्योरिटी का टास्क दिया है, तो उस टास्क को हमने पूरी ईमानदारी से निभाना है। सर आप जब एसपीजी में सर्व कर रहे थे, सो आपने कौन सा टाइम पीरियड ज़्यादा एंजॉय किया, व्हेन वी हैड अवर प्राइम मिनिस्टर एज डॉक्टर मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी? एसपीजी ज्वाइन करने के बाद में जैसा पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ है और एसपीजी में ये अंतर है कि वहाँ पे 100% आपको प्रोफेशनल ड्यूटी है, आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। अभी वीआईपीज़ में आपने बताया कि ये दोनों प्राइम मिनिस्टर के साथ में मैंने करीब 5 साल काम किया है, लेकिन हमारा जो जॉब प्रोफाइल है, प्रोफेशन है, वो दोनों तो उसमें मतलब किसी के साथ में एन्जॉयमेंट ज़्यादा है या कम है नहीं, हमारे केवल हमारे ड्यूटी से मतलब रहता है, और जो भी हमको ड्यूटीज़ दी जाती है तो वो हमारे ट्रेनिंग जो दी जाती है उसी प्रोफेशनल तरीके से देना है। वीआईपीज़ हमारे साथ में जिसकी वीआईपी के साथ में ड्यूटी करनी है तो हमारा अप्रोच सेम ही रहता है। तो दोनों प्राइम मिनिस्टर के साथ में हमारा जो जॉब प्रोफाइल है या हमारा ड्यूटी का शेड्यूल है वो करीब करीब बराबर ही जाता है, चाहे इंटरनल दिल्ली में हो या इंडिया के किसी भी सिटी में उनको कंपनी कर रहे हैं या फॉरेन टूर्स में हम साथ में हैं, तो करीब करीब हमारा जो पर्सनल सिक्योरिटी का अप्रोच बराबर ही रहता है। वीआईपी हमारे साथ में कोई भी हो तो हम अपने प्रोफेशन के हिसाब से पर्सनल सिक्योरिटी का जिम्मा निभाते हैं। सर एक ऑफिसर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या किसी कैंडिडेट को बीएसएफ ज्वाइन करने के लिए एज एन ऑफिसर क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए? बीएसएफ या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस या डिफेंस फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, उसके अंदर ज्वाइन करने के लिए एक क्वालिटी तो बिल्कुल कॉमन है कि भी सिंसियरिटी है आपका, मतलब कोई भी फोर्स ज्वाइन करने के तो आप में 100% सिंसियरिटी होनी चाहिए, और जब तक आपका एम अचीव ना हो जाए तब तक आपको अपना सिंसियरिटी के साथ में एफर्ट्स जारी रखना है। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना और फोर्सेस ज्वाइन करने में एक दूसरा अंतर ये है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड वो भी आले दर्जे का होना चाहिए, क्योंकि एंट्री लेवल पे काफ़ी टफ टेस्ट होते हैं, वो आपको क्लियर करना है। तो सिविल की सर्विसेज और आर्मी या पैरामिलिट्री की सर्विस ज्वाइन करने के लिए एक अंतर ये है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप कंपटीशन के अंदर पार उतर सकते हैं। और इसके साथ में सिंसियर एफर्ट्स करना चाहिए और ईमानदारी से अपनी मेहनत करनी चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो व्यूअर्स को मेरी तरफ से यही है कि चाहे आपने कोई भी सर्विसेज पैरामिलिट्री ज्वाइन करनी है या डिफेंस ज्वाइन करना है या कोई भी सर्विस ज्वाइन करनी है तो आपके सिंसियरिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और लेटेस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है प्रिपरेशन के लिए मटेरियल और उसको आपको अपने साथ में रखना है, और कंटिन्यूसली जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेते हो फिज़िकली कोई भी सर्विसेज तब तक आपने तन मन धन से मेहनत करते रहनी चाहिए।
So tell us about your current role in Cadila, which is of DGM, Deputy General Manager. उसके बारे में हमको आप कुछ बताइए और how are you liking it after जैसे आप you have served in a like forces for quite a good amount of time. So are you enjoying this new aspect of work, which is working with a private company? मुझे बीएसएफ में करीब 21 साल की मैंने 21 इयर्स की रेगुलर सर्विस करी। उसमें डेपुटेशन पीरियड मेरा एसपीजी का था, वो करीब 10 साल का था। तो 10 साल में बीएसएफ में रहा, 10 साल इसमें रहा। और उसके बाद में मेरे अहमदाबाद में सेटल होने की या मेरे नेटिव में सेटल होने की एक मेरी इच्छा थी, क्योंकि खास करके बच्चों का एजुकेशन वगैरह फोर्सेस के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह होते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो मेरे मन में एक था कि मैं ये इतनी लंबी सर्विस के बाद में कहीं प्राइवेट में सेटल हूँ। तो बीएसएफ की सर्विसेज और एसपीजी की जो सर्विसेज थी उसका एक कहें तो ये बोनस ही है कि प्राइवेट सेक्टर्स में अच्छी ऑफर्स मिल जाती है। तो बीएसएफ में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह काफ़ी हमको नॉलेज हो जाता है और एसपीजी का भी एड ऑन हमारा एक्सपीरियंस है, उस वजह से प्राइवेट में काफ़ी है। तो मैंने प्राइवेट में अप्लाई करी, तो मेरे को प्राइवेट में एक साथ में 3 ऑफ़र मिली थी। और एक स्टेज ये आ गया था कि मेरा 20 इयर्स कंप्लीट हो गया था, मैं पेंशन के लिए एलिजिबल हो गया था। तो एक जॉब सिक्योरिटी भी दिमाग में आ गई थी कि अभी पेंशन तो मेरा है ही है, और होम टाउन में या होम स्टेट में सेटल होने की मेरी जो तमन्ना थी। तो लकीली मुझे कैडिला में से एक ऑफ़र मिल गया। तो उस वक्त मैंने एज ए सीनियर मैनेजर ज्वाइन किया था एडमिन एंड सिक्योरिटी में। और कैडिला में मुझे अभी करीब 12 साल कंप्लीट हो गया। तो कैडिला भी बहुत एथिक्स वाली कंपनी है और वर्ल्ड नोन कंपनी है। तो मुझे ऐसी कंपनी ज्वाइन करने का गर्व भी है। और कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, उस कंपनी को अभी 2019 और 20 का द ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड से भी मिला गया है। तो एज ए एम्प्लॉई अगर देखने जाओ तो जिस कंपनी को ग्रेट प्लेस ऑफ वर्क का अवार्ड मिला है, तो उस कंपनी में काम करने का जो मज़ा है वो भी अलग ही है। पूरी इज्जत के साथ में आप काम कर सकते हो। So tell us about the work-life balance. आप अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ जो है वो कैसे बैलेंस करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में, तो उस हर एक कंपनीज के अंदर एचआर इस चीज़ को ध्यान देते हैं। और लकीली कैडिला को 2019-20 का द ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड भी मिला है। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस को सोच समझकर पॉलिसीज़ बनती है एचआर की तरफ से। तो वर्क और पर्सनल लाइफ का जो आपका बैलेंस है, आधे एफर्ट्स आपको खुद को लगाने हैं। बाकी कंपनीज़ की ऐसी स्कीम रहती है ताकि मतलब हर एक एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन के साथ में और खुशी के साथ में नौकरी कर सके। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो कंपनी हमारा मतलब काफ़ी ध्यान देते हैं। और दूसरा मेरा एक निजी एक्सपीरियंस भी है, वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले। तो उस सिद्धांत पे आप करते हो, तो जब आप ऑफिस में हो तो ऑफिस के प्रति आपने पूरा डेडिकेशन के साथ में काम करना है। तो मैं जब ऑफिस में हूँ तो ऑफिस का ही काम, दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है। घर के मतलब इम्पोर्टेंट फ़ोन वगैरह भी मिस करने पड़ते हैं कई बार, क्योंकि आपका मतलब इतना सारा फोकस अपनी डेली रूटीन्स में या वहाँ के जो चैलेंजेस है उसमें रहते हैं। और दूसरा कंपनी भी आपको मतलब वीकली ऑफ वगैरह रहते हैं, संडेज़, हॉलीडेज़, मिनी वैकेशंस, ये सारा प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अंदर आप अपना प्लानिंग करते हैं। साल में आपको काफ़ी अच्छी छुट्टियां वगैरह भी मिलती है। तो उस छुट्टियों को आप अपने परिवार के साथ में एंजॉय करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो परिवार के साथ में आपको इतना सारा टाइम मिल जाता है, तो वर्क लाइफ और बैलेंस का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और घर आने के बाद में आपको जब तक कोई इमरजेंसी नहीं है ऑफिस के काम से, उस वक्त कोई ज़्यादा ध्यान नहीं, अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में एंजॉयमेंट कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। उसके अंदर अपनी तरफ से जितना योगदान है, उससे भी ज़्यादा हमारे जो एम्प्लॉयर है
वो हमारा काफ़ी ध्यान रखते हैं। सर, आज के समाज में लेडीज़ की हम जो है स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो आपके हिसाब से टॉप 3 चैलेंजेस क्या हैं जो आज के समाज में हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं कि भाई ये चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन एम्पावरमेंट, और अकॉर्डिंग टू यू उसके सोल्यूशन क्या होने चाहिए? किसी भी सोसाइटी के लिए विमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटीज़ के अंदर या मेल है या फीमेल है उनमें इक्वलिटी होनी चाहिए। लेकिन हमारा जो इंडिया के अंदर या पर्टिकुलर कुछ स्टेट के अंदर पुराने ज़माने से चल रहा है कि लेडीज़ को या वुमेन को काफ़ी निगलेक्ट किया जाता है, उनको इतनी आज़ादी नहीं, इतनी लिबर्टी नहीं है। गाँव में उनको मतलब पर्टिकुलर गांव से बाहर जाने हैं तो एजुकेशन वगैरह जाने का मतलब रिस्ट्रिक्शन रहता है कि उनको पढ़ाना नहीं है। और कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी है, खास करके राजपूत वगैरह में है, उसमें दहेज प्रथा भी है। और लड़के वालों को आज भी काफ़ी ऊपर माना जाता है कि उनका हाथ ऊपर है, और लड़कियों का मतलब हमेशा उनके जो पेरेंट्स है उनको झुकना पड़ता था पहले ऐसा। लेकिन अभी धीरे धीरे ये सब चीज़ें कम हो रही है, जैसे जैसे एजुकेशन का व्याप बढ़ रहा है, गाँव तक पहुंच रहा है, और सोसाइटी भी आजकल जागृत हो गई है। तो ये सब 2-3 जो कुप्रथा हमारी पहले से चली आ रही है उसमें आपको अभी अपने घर से ही शुरू करना है कि नो दहेज का जो सिस्टम है उसको बंद करना है। पर्दा सिस्टम है गांव में, पर्टिकुलर कुछ खास करके राजस्थान और गुजरात के रिमोट एरियाज़ है उसमें पर्दा सिस्टम वगैरह है। तो ये सब पर्दा सिस्टम लेडीज़ के लिए क्यों है? तो अपने घर से ये सब चीज़ें, दहेज प्रथा है, पर्दा सिस्टम है, एजुकेशन है, ये 2-3 चीज़ें हैं जो मतलब उनको शुरू से आगे आने में बाधा रहती थी वुमेंस को। तो वो सब हमको मिलजुल के सब पुरानी जो सिस्टम्स बंद करनी है। और अभी आज के ज़माने में सोसाइटीज़ में काफ़ी फ़र्क आ गया है इसमें, लेकिन अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है फुल्ली डेवलपमेंट के लिए वुमेन के। So your thoughts on the ladies coming from the Rajput community, and what should we do to make them more empowered? मैंने पिछले सवाल की जवाब में ये बताया था कि लेडीज़ का जो एम्पावरमेंट है, तो लेडीज़ जो खास करके राजपूत समाज में है, 2-3 जो कुप्रथाएँ अपनी चल रही थी उसमें एक दहेज प्रथा है, पर्दा सिस्टम है, एजुकेशन है, पढ़ाई मतलब एक पर्टिकुलरली 10वीं या 12वीं के बाद में कहीं बाहर नहीं भेजना है, तो इक्वलिटी नहीं है, उनको फ्रीडम नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ें जो राजपूत कम्युनिटी में खास करके है, और ख़ास करके राजपूतों का जो गढ़ है राजस्थान, उसमें ये सब चीज़ें अभी भी चल रही है। तो उसमें हर सिटीज़न या हर राजपूत का रोल होना चाहिए कि ये सब चीज़ें जितनी भी कम हुई है लेकिन इसको कंप्लीट ख़त्म करना है, और मेल और फीमेल में इक्वलिटी होनी चाहिए। So, आपका संदेश to the future candidates who wants to join BSF or who wants to join the SPG? BSF या SPG या कोई भी फोर्सेस या सिविल सर्विस कोई भी हो, तो उसके लिए जो एस्पिरेंट्स है उसका नंबर 1 सिंसियरिटी है। आदमी को सिंसियर होके काम करना है, और दिमाग में एक एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि ये किसी भी हालत में मेरे को ये अचीव करना है। उसके लिए सारी फिज़िकल फिटनेस की तैयारी, आपको मेंटल टैलेंट, आपका रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपकी तैयारी, ये सब कुछ आपने पीछे पड़ जाना है जब तक कि आपका गोल अचीव ना हो जाए। तो सिंसियरिटी नंबर 1 है, और हार्ड वर्किंग भी करना है। नॉर्मल आपके रूटीन के अंदर तैयारी से ये सब कुछ नहीं चाहिए होता है, क्योंकि लाखों के हिसाब से एस्पिरेंट्स होते हैं और वैकेंसीज जनरली होती है वो हज़ारों में होती है। तो आपको एक मॉब से हट के आपने कार्रवाई करनी है। नॉर्मल प्रिपरेशन से आप क्रैक नहीं कर सकते कोई भी एग्जामिनेशन, तो स्पेशल प्रिपरेशन, फिज़िकल, मेंटल, इसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और सिंसियरिटी से, हार्ड वर्किंग के साथ में आपने ईमानदारी से मेहनत करनी है, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। So tell us something about your daily routine. डेली रूटीन, अभी जैसे मैंने फोर्सेस तो छोड़ दी है, अभी सर्विसेज में हूँ,
तो सर्विसेज के अंदर टाइमिंग होते हैं ऑफिस के, जैसे मेरा ऑफिस है उसका टाइम है 9 to 5:30। तो मेरे जो भी मतलब मेरे को ट्रेनिंग दी है या मेरी शुरुआत बचपन से मैं आदत है, एक पंक्चुअलिटी मेरी बाल बहुत परफेक्ट है। तो पंक्चुअलिटी के हिसाब से मैं आज तक कहीं भी लेट नहीं हुआ हूँ। ऑफिस के रूटीन का जो 9 बजे का टाइम है या कभी 8:30 का है या कभी 9:30 का, जो भी टाइम है उससे 10 मिनट पहले मैं रिपोर्ट करता हूँ। और जो रूटीन आपका शेड्यूल है टाइमिंग, जैसा 5:30 का या 6 o'clock का है, तो मैं वो टाइम पूरा करके ही जाता हूँ। तो एक आपको दिया गया है ऑफिस का टाइम, वो अगर टाइम आप पूरा स्पेंड करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है, उसमें कोई कट शॉट नहीं है। तो पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है ऑफिस के कामों में। तो अभी जैसे मैं कैडिला फार्मास्यूटिकल्स में हूँ, तो यहाँ के आसपास के जितने प्लांट्स वगैरह है सभी में करीब करीब मेरी जॉब पोस्टिंग हो गई है। तो हर एक का टाइमिंग वगैरह हर एक के चैलेंजेस अलग है, लेकिन जो शेड्यूल है मैं शेड्यूल के को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। और बाकी तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, और अभी इतना सारा साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो करीब करीब सारी चीज़ें कंट्रोल में है। या ज़्यादातर कभी कोई इमरजेंसी आती है उसको छोड़ के करीब करीब सब रूटीन में आप मैनेज कर लेते हैं काम को। So tell us something about your religious practice. फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा रिलीजियस में बहुत ज़्यादा मतलब मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, या मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कम है। एक जस्ट फॉर्मेलिटी 1 या 2 मिनट की रहती है, सुबह दिया या अगरबत्ती करके हार्डली 1 आध मिनट के लिए मैं करता हूँ। लेकिन मेरा जो शुरुआत से जो ट्रेनिंग पीरियड से लेके अभी तक 33 या 34 साल है, तो मैं वर्क इज़ वर्शिप या कर्म ही धर्म है उस सिद्धांत पे हमेशा काम करता हूँ। और जो आपने काम सारा ईमानदारी से किया और बखूबी आपको जो भी ड्यूटीज़ दी है वो आपने निभाई, तो वर्क इज़ वर्शिप वही मेरी पूजा है। जब तक आप रिटायरमेंट नहीं होते हो तब तक इसी लाइन पे चलना है कि आपका काम, आपकी सर्विसेज के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन बढ़िया है, तो वही आपके लिए एक पूजा है। So what is your success mantra? सक्सेस मंत्र जैसे मैंने बताया, ये जो किसी भी सर्विस को ज्वाइन करने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो सिंसियरिटी। सक्सेस मंत्र के लिए मेरा जो वन लाइनर होगा वो सिंसियरिटी है। कोई भी काम आप लो तो उसको पूरा सिंसियरिटी से, पूरा मन से करना है, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। तो अगर एक लाइन में बोल सकते हो, लाइफ के किसी भी फील्ड में आपके सिंसियर एफर्ट्स होने चाहिए। सिंसियर एफर्ट्स आपके रहेंगे, आपका सिंसियर फॉलोअप्स हर चीज़ में रहेगा, तो आपको लाइफ में ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो सिंसियरिटी, उसके अलावा आपका हार्ड वर्किंग है, टाइम आपको देना है, ये सब डेडिकेशन, डिवोशन तो है ही, लेकिन सिंसियर एफर्ट्स आपके बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए, चाहे आप बिज़नेस में हो या सर्विस में हो या कहीं पे भी हो आप, तो आदमी में सिंसियरिटी होनी चाहिए। तो सिंसियरिटी मेरा मतलब सक्सेस मंत्र सिंसियरिटी है। Sir, so after you are free from the service, आपके future plan, retirement plans क्या हैं? अभी सर्विसेज ज्वाइन करे हुए मेरे को करीब मैंने 87 में ज्वाइन किया था। 33 ईयर्स से मैं सर्विस में हूँ, चाहे मैं BSF में था, SPG में था, अभी कैडिला फार्मास्यूटिकल्स में प्राइवेट जॉब में हूँ। अभी मैं 56 प्लस हो गया हूँ, और यहाँ पे रिटायरमेंट का जो एज है वो 60 है। तो करीब 3-4 साल मेरा इन्वॉल्वमेंट सर्विस में और रहेगा। लेकिन ये सर्विस जैसे मेरी ख़त्म होगी, तो जो बच्चे हैं मेरे 2 सन्स हैं, वो लोग सब सेटल हो जाते हैं। तो उसके बाद मेरा फ्यूचर प्लानिंग यही है कि जो मेरा नेटिव प्लेस है जामला, तो जामला में जाके मैं विद फैमिली सेटल होके रहूँगा विद पीस ऑफ माइंड। और आई हैव गॉट ए वंडरफुल फैमिली देयर सपोर्ट करने के लिए और एन्जॉयमेंट के लिए, कंपनी के लिए। तो मेरा फ्यूचर प्लानिंग रिटायरमेंट के बाद में डेफिनेटली यही रहेगा कि मैं अपने नेटिव प्लेस जामला में विद फैमिली सेटल हूँ, और एक वंडरफुल फैमिली है उसके साथ में मिलजुल के बाकी का टाइम मैं व्यतीत करूँ।
So in the current COVID times, आप और आपके फैमिली एज अ प्रिवेंटिव मेजर क्या स्टेप्स ले रहे हैं, और आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस वी शुड फॉलो सो दैट कोविड का स्प्रेड अभी बहुत हो रखा है, तो वी कैन मिनिमाइज इट एंड सेव लाइव्स। जो कोविड पेंडेमिक है वो पूरे अभी वर्ल्ड की समस्या है और हर कोने में फैला हुआ है। तो मैं अपने घर की बात करूं, उससे पहले मैं ऑफिस की बात करूं, तो अभी हमें हर एक ऑफिस के अंदर और ये सब चीज़ों के हम लोग हैंडलर है, हम लोग इसके इंचार्ज है। कोविड टीम की इंचार्ज जनरली एडमिन एंड सिक्योरिटी टीम रहती है। तो हमारा मंत्र है SMS। कोविड को से बचाने के लिए हम SMS का मंत्र सबको देते हैं। S का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग, M का मतलब है मास्क, मास्क होना है, नो मास्क नो एंट्री, और तीसरा है सैनिटाइजेशन। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन, ये तीनों चीज़ की वजह से आप मतलब कोविड को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तो हम ऑफिस के अंदर जहाँ भी है हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो खुद करते हैं, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम SOP के हिसाब से फॉलो करवाते हैं, और वही काम हम लोग अभी घर के लिए हमारा आसान हो जाता है, क्योंकि ऑफिस के अंदर पूरे दिन यही काम करते हैं। तो घर में भी फैमिली को हम हमेशा बताते रहते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया, गवर्नमेंट की एडवर्टाइज वगैरह ये सब कुछ मतलब काफ़ी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये SMS का अगर आप हमेशा ख्याल रखेंगे तो कोविड से बच सकते हैं। सो नेक्स्ट सेक्शन इज़ योर फेवरेट। आपकी मन पसंदीदा चीज़ें क्या हैं, उसके बारे में हम थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे। सो लेट्स बिगिन। So, your favorite color? मेरा फेवरेट कलर वैसे ब्लू है, और ब्लू क्यों है वो मेरे को पता नहीं, ये नेचुरली है। मेरे को शुरू से ब्लू कलर अच्छा लगता है, और मेरे जो कपड़ों का सिलेक्शन होता है ज़्यादातर शर्ट्स वगैरह या तो लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, तो जो ब्लू कलर है मेरे को पहले से ही पसंद है। Your favorite city? मेरे फेवरेट सिटी में ज़्यादातर मेरी मतलब आधी लाइफ अहमदाबाद में गई है, तो फेवरेट सिटी तो मेरा अहमदाबाद ही है। अहमदाबाद को मैंने काफ़ी नज़दीकियों से देखा हुआ है, और अहमदाबाद मेरा पसंदगी का सिटी रहेगा। लेकिन मेरी सर्विसेज के दौरान मुझे दिल्ली में भी काफ़ी रहने का मौका मिला है, तो दिल्ली भी मेरा एक फेवरेट सिटी बन गया। करीब 10 साल में रहा हूँ, तो दिल्ली की भी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह है और नेशनल कैपिटल है, इस वजह से मेरे को मतलब दिल्ली ने भी काफ़ी अट्रैक्ट किया है। तो अहमदाबाद और दिल्ली ये दोनों मेरे फेवरेट सिटीज़ है इंडिया में। Your favorite actor? मेरा फेवरेट एक्टर, ऑल टाइम फेवरेट एक्टर मेरा अमिताभ बच्चन है, क्योंकि हमारे जो स्कूल का टाइम और कॉलेज का टाइम है उस वक्त अमिताभ बच्चन मतलब सुपरस्टार बन चुका था, और हिम्मतनगर में या अहमदाबाद में जहाँ भी रहते थे अमिताभ बच्चन की जो भी फिल्म आती थी हम पक्का पहले वीक में देखने की कोशिश करते हैं। तो अमिताभ बच्चन मेरा ऑल टाइम फेवरेट हीरो है। Your favorite philosophy? मेरा फेवरेट फिलोसफी 2-3 पार्ट में है। एक वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही धर्म है, अपना काम ईमानदारी से करो, यह है। एक दूसरा मेरा है, मैंने जो लाइफ में आजमाया हुआ है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। मतलब अपने काम से आप मतलब रखो, दूसरा क्या करता है उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखो, और हमेशा मतलब इसी फिलॉसफी पे चलता हूँ। और लोग बोलते हैं ना कि माइंड योर ओन बिजनेस, तो मैं अपना जो काम है उसी का ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। आजू बाजू में या लोग क्या करते हैं उसमें मेरी दिलचस्पी बहुत कम है। तो ये 2-3 जो चीज़ें मैंने मेरी निजी ज़िंदगी में भी अपनाई हुई है, तो 2-3 चीज़ें ये मेरे इस फिलॉसफी पे काम करता हूँ। आपका मनपसंद गाना, एंड अगर आप वो गाना थोड़ा सा 1-2 लाइन सुना सके तो इट विल बी ग्रेट। वैसे मेरे गाना गाने में कोई दिलचस्पी तो नहीं कहूँगा, गाना मैं गा नहीं सकता हूँ। वैसे मैं बाथरूम सिंगर हूँ, लेकिन गाने सुनने का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ है।
मैं कई बार मतलब एंटरटेनमेंट के लिए 2-3 घंटे एक साथ में आईपॉड के साथ में खास करके राजस्थानी सॉन्ग्स, गुजराती सॉन्ग्स, पुराने हिंदी सॉन्ग्स, ये मतलब काफ़ी मेरे को सुनने का शौक़ है पार्टी में, मतलब गाने सुनने का। लेकिन गाने का शौक़ मेरे को काफ़ी कम है, और अगर आप बोलते हैं 2-3 लाइन गाने का तो हो सकता है थोड़ा मिमिक्री भी हो जाए, क्योंकि मेरा आवाज़ इतना अच्छा नहीं है। तो मैं खाली 2-3 लाइन आपको सुना सकता हूँ। और देश प्रेम के गानों का मेरे को काफ़ी शौक़ है सुनने का, खास करके गाने में तो मैं काफ़ी पीछे हूँ, लेकिन फिर गाना नहीं तो उसके जस्ट मैं आपको सुना सकता हूँ। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं गरमा तू, मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। Wow, that is beautifully sung. Thank you so much. आपकी मनपसंद सीजन? मेरी मनपसंद जो सीज़न है वो सर्दियों की रहेगी, विंटर्स। विंटर्स शुरू से मेरी मनपसंद सीज़न इसीलिए रही है कि उसमें हम लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं और घूमने के शौकीन हैं बहुत ज़्यादा। तो विंटर्स मतलब ये सब चीज़ों को सपोर्ट करती है, चाहे आप और कपड़े पहनने के भी शौकीन है तो विंटर्स में आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो, पार्टी एंजॉय कर सकते हो। घूमने के लिए आप मतलब सर्दियों में अच्छी जगह पे आप जा सकते हो। तो मेरा ऑल टाइम जो फेवरेट सीज़न है वो हमेशा सर्दियाँ ही है, और सर्दियों को हमेशा हम काफ़ी एंजॉय करते हैं। आपकी मनपसंद डिश? मेरे को मेरी डिश के बारे में हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं मेरी फैमिली की तरफ से कि मेरे को कोई भी चीज़ से परहेज नहीं है खाने पीने में। मेरे घर में कोई कंप्लेंट नहीं है कि भी मैं ये पर्टिकुलर चीज़ खाता हूँ या नहीं खाता हूँ। तो वैसे मनपसंद डिश की बात करें तो मेरे को राजस्थानी जो सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मंगोड़ी की सब्जी है, गट्टे की सब्जी है, सांगरी की सब्जी है, ये सब मेरे बहुत काफ़ी पसंद करता हूँ। और जो घर का प्रिपरेशन है ये 3-4 सब्जियों का, ये मेरे को काफ़ी पसंद है। और दूसरा नॉन वेज का भी, फोर्सेस में रहा तब भी घर में भी चलता है, नॉन वेज का भी मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। लेकिन मेरे को एक सिंपल फूड पसंद है, सिंपल फूड दाल रोटी भी पसंद है, और उसमें जो कंबाइन राजस्थानी डिशेज़ है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, खास करके दाल बाटी वगैरह भी। आपकी मनपसंद हॉबी? मनपसंद हॉबी अगर कहो तो सबसे ज़्यादा मैं अपने फ्रेंड्स और अपना जो वंडरफुल फैमिली है जामला, उसके साथ में एंजॉय करने में विश्वास रखता हूँ। तो मेरा सबसे बढ़िया हॉबी है वो पार्टिंग है, मतलब अच्छे दोस्त, सिलेक्टेड दोस्त, और हमारे जो वंडर फैमिली के हमारे अंकल्स है फर्स्ट जनरेशन, फिर हम ब्रदर्स है सेकंड जनरेशन, और हमारे भतीजे सारे, तो उनकी हमारी इतनी बढ़िया कंपनी है, हम हमेशा एंजॉय करें। तो मेरा सबसे बढ़िया हॉबी है वो पार्टिंग है। और दूसरा ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग में जब भी मतलब आपका स्पेयर टाइम है तब लोकल ट्रैवलिंग या दूसरे स्टेट्स में खास करके बाय रोड ट्रैवलिंग करने का मैं मतलब बहुत शौकीन हूँ। और बाय रोड हम काफ़ी लंबी सफ़र भी करते हैं। बाय रोड बाय कार आपका जर्नी करने का कुछ मज़ा ही अलग है। जैसे भी अहमदाबाद में हम लोग रहते हैं तो जम्मू कश्मीर तक या पंजाब तक, और कितनी भी दूरी क्यों ना हो वहाँ हम लोग कार से ही ट्रैवल करते हैं। तो कार के ट्रैवलिंग में सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि आप अपने टाइम के हिसाब से प्लान बना सकते हो।
तो ट्रैवलिंग भी विथ फैमिली ट्रैवलिंग का भी मेरा एक हॉबी है। आपकी मनपसंद फेस्टिवल? मेरा मनपसंद फेस्टिवल मैं जामला में बड़ा हुआ हूँ, पला पढ़ा हूँ उधर, तो और इतनी बढ़िया फैमिली के बीच में हूँ। तो जामला में मेरे को दीपावली और दीपावली के दूसरे दिन जो बेहस्ता वर्ष गुजरात में होता है, न्यू ईयर, वो मेरे को बहुत पसंद है। क्योंकि ऐसे तो आप पूरे फैमिली मेम्बर्स को मिल नहीं पाते, लेकिन दीपावली और नया साल का ये फेस्टिवल इतना बढ़िया है कि आप पूरे परिवार के हर मेंबर से मिल सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। दिवाली के शाम के टाइम रोशनी वगैरह होती है, मिलजुल के रोशनी करते हैं और पटाखेबाजी आप कर सकते हो। और दूसरे दिन गुजरात में खास करके नया साल होता है, तो हर फैमिली एक दूसरे के घर पे जाके पूरे ग्रुप में हम लोग निकलते हैं, हर एक को दिवाली और नए साल को ग्रिट करते हैं और पार्टी करते हैं। तो सबसे बढ़िया मेरे को जो फेस्टिवल लगता है और जो मैंने बहुत बढ़िया एंजॉय किया है वो दीपावली और नए साल का है, फॉलोड बाय होली में भी सेम हमारा रहता है। उसका सेलिब्रेशन थोड़ा अलग से हट हो जाके, रंगों का त्यौहार है होली, तो रंगों के साथ पार्टिंग होती है। और वो भी एक मेरा गांव के अंदर ये दो फेस्टिवल बहुत प्यार से मनाते हैं। और आपका मनपसंद सब्जेक्ट? मेरा मनपसंद सब्जेक्ट अगर बताऊं तो मेरे को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। गाने में तो आपको मैंने पहले ही बताया, गाना मैं नहीं गा सकता हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ, लेकिन मेरे को गाने सुनने का, म्यूज़िक सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मेरा फ्री टाइम जब भी होता है, ख़ास करके सोने से एक आध घंटे पहले या आधा घंटा जब भी टाइम मिलता है, तो मैं मेरे म्यूज़िक सिस्टम से या मोबाइल आईपॉड से गाने सुनता हूँ, मेरे फेवरेट सॉन्ग्स। और ख़ास करके कल्चरल जो सॉन्ग्स है, राजस्थानी सॉन्ग्स, इवन गुजराती सॉन्ग्स, ये मेरे को बहुत पसंद है। और ओल्ड गाने जो हिंदी गाने हैं वो मेरे को पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और एंजॉय करता हूँ म्यूज़िक लिसनिंग। Once again, sir, thank you so much for allowing us to have this conversation with you and being part of it and sharing your views very candidly with us. Thank you so much, Hukam. Khamagini. थैंक यू कविता, आपने भी आपका काफ़ी टाइम निकाला और फॉर ब्यूटीफुली कंडक्टिंग द इंटरव्यू। थैंक यू वंस अगेन कविता। मैं आशा रखती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जॉय ऑफ शेयरिंग से कनेक्टेड रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो से आप मिस आउट ना हो जाएं। थैंक यू सो मच।